सो वी स्टार्टेड विद द लूपिंग। लूपिंग वो चीज होती है जहां पर हमारे पास में नंबर ऑफ स्टेटमेंट होते हैं, उनको अगर रिपीटेडली एग्जीक्यूट करना है इन द सेम सीक्वेंस और द सेम पैटर्न, इन दैट केस वी यूज द लूपिंग। Basically, there are three different types of the looping: for loop, while loop, and the do while loop. So we started with the for loop. For loop, it consists of the three different statements: initialization, condition, and the updation. So initialization statement is going to be execute only once. Condition is going to be execute multiple times, that is used to check the condition. And if this condition is true, this particular yellow color is going to be execute multiple time until this condition is going to be executed or it is evaluated to be true. So after execution of this particular block, this will move to the updation part, and the updation it will increase by 1 or 2 or depend upon the condition. From the updation it moves to the condition part, and this will continues go on. If the condition evaluate to the false, then it will move out of the for loop. This is simple, the execution of the for loop. For the flowchart of the for loop, we have to specify this initialization separately, that is I is equals to 2. We have to specify the condition, that is with the help of the diamond box. Updation, here right side we are getting the updation, and whatever be the body of this for loop is separately. So same scenario or same type of the flowchart, same type of the algorithm will be implemented for the while loop as well as for the do while loop and for the for loop. There will be no change in the algorithm and the flowchart sequence for the for loop, while loop, or the do while representation. Question comes when we have to select this for loop and when we have to select this do while loop. We will discuss on this. So we had written this algorithm: initialize I is equals to 1, condition, and this is the updation portion. So in between this condition and updation portion, we have to write the block of the for loop. यहाँ पर हमारे पास में for loop का block आ गया. Yesterday we had seen the while loop. While loop is same as that of the for loop. So the syntax is while followed by condition, opening curly braces and closing curly brace. In between this, we have to write the body of while loop. So if this condition is evaluated to the true, whatever be the condition block of code which we want to execute, we have to write in between these curly braces. If this condition is evaluated to the false, it will move out of this block. So this is the flow for representation of the while loop. Condition, if it is evaluated to the true, it will execute and this will rotate until the condition evaluate to the true. If the condition is false, it will move out of this block. Simple. So now third one is our do while block. Do while, what we have to do, initially we have to execute the statement and then we have to check for the condition. I'm repeating one more time. What we have to do in case of the do while, initially we have to execute this block and then we have to check for the condition. What we are going to execute do while. यस वही आ रहा हूँ मैं. एग्जीक्यूट डू वाइल ब्लॉक, देन चेक दी कंडीशन. क्या लिखा हमने? एग्जीक्यूट डू, सॉरी डू ब्लॉक, देन चेक दी कंडीशन, देन चेक दी कंडीशन. चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ लिखते हैं चेक दी कंडीशन एंड देन एग्जीक्यूट दी ब्लॉक. चेक दी कंडीशन एंड देन एग्जीक्यूट दी ब्लॉक. तो अब देखो डिफरेंस आपके ध्यान में आ गया कि यहाँ पर कैसे होगा कि इफ दिस कंडीशन इज इवैल्यूएट टू दी फॉल्स, पहली कंडीशन ले लीजिए. चलो यहाँ पर आते हैं. यहाँ पर मैंने ऊपर में वैल्यू जो कल का प्रोग्राम है वही लिया मैंने. वाइल
आई लेस देन और इक्वल्स टू 5। ध्यान से देखिए, ऊपर में डिक्लेरेशन किया हुआ है हमने, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी हैड रिटन आई इज इक्वल्स टू 6, वी आर चेकिंग फॉर द while ब्लॉक। while ब्लॉक का एग्जीक्यूशन चेक कर रहे हैं, वी हैव स्पेसिफाइड द आई इज इक्वल्स टू 6 while I less than equals to 6, कंडीशन 5, कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, जल्दी बताओ। हाँ जल्दी बताइए, कंडीशन ट्रू होगी कि फॉल्स होगी? फॉल्स। फॉल्स बस फॉल्स क्यों होगी, देखिए बिकॉज वी हैव इनिशियलाइज्ड आई इज इक्वल्स टू 6 और अंदर हम चेक कर रहे हैं आई, आई की वैल्यू कितनी है 6, 6 इज लेस देन 5 है क्या, नहीं। इक्वल है क्या, नहीं। इसका मतलब कंडीशन फॉल्स होगी, ये एग्जीक्यूट होगा क्या अंदर का, जल्दी एग्जीक्यूट होगा क्या, नो होगा। चलो हो गया, कुछ भी डिस्प्ले नहीं मिला, इसका मतलब है एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब डू वाइल में क्या हो रहा है देखो, पहला वाइल था, कर दिया हमने डू, दो डॉट डालना और वाइल करना। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ता है जो ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है उसको डू, इसके बाद ये जो करली ब्रेस है इसके जस्ट बाद में लिखेंगे वाइल, कंडीशन आई लेस देन और इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट कंप्लीट, यहाँ पर आएगा सेमीकोलन। सेमीकोलन देखिए, हमने फॉर लूप के बाद में सेमीकोलन नहीं लगाया, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं दिया। वाइल के बाद में यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं दिया, करेक्ट। बट इन केस ऑफ द डू वाइल, वाइल के बाद में आफ्टर राइटिंग दिस वाइल कंडीशन यू हैव टू गिव दिस सेमीकोलन। अब देखिए आई इज इक्वल्स टू 6, ये कंडीशन क्या है हमारी, फॉल्स हो रही है, मतलब रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा, देखिए एक स्टार वहां पर प्रिंट हुआ, कैसे हुआ हम बताता हूँ, देखो ध्यान से देखो अभी, आई इज इक्वल्स टू 6 है, इट्स ओके। डू, डू मतलब कि आपको ये करना है, मैंने आपको कंडीशन बताई क्या, नहीं, आप लोगों को करना है, क्या करना है, यू हैव टू प्रिंट दी स्टार। चलो मैंने प्रिंट कर दिया, उसके बाद क्या करना है, यू हैव टू अपडेट आई प्लस प्लस, मतलब कि हो जाएगा 7, और उसके बाद ये हो जाएगा वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 6, यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये ऊपर नहीं जाएगा, ये यहाँ से नीचे जाएगा, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या हो रहा था कि इफ द कंडीशन इज इवैल्यूएट टू द ट्रू, ये अंदर जाएगा तब एग्जीक्यूट होगा, मतलब कि पहली कंडीशन अगर हमारी फॉल्स होती है तो ट्रू ब्लॉक जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। लेकिन डू वाइल में अलग होता है, डू वाइल में ये जो ब्लॉक होता है इट एग्जीक्यूट्स एटलीस्ट वन, एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस। तो ये डू ब्लॉक कितने बार एग्जीक्यूट होगा कम से कम, जल्दी बताओ, कम से कम एक बार एग्जीक्यूट होगा, अगर कब, इफ कंडीशन इज इट एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन, इफ फर्स्ट चेक में अगर इसकी वैल्यू अगर फॉल्स आती है तो भी ये एग्जीक्यूट करेगा। फॉर लूप में फॉर और वाइल लूप सेम है। अब देखो कंपैरिजन की तरफ आओ, फॉर लूप में जब जाओगे आप, तो इफ कंडीशन इज इवैल्यूएट टू द फॉल्स इन द फर्स्ट कंडीशन, पहले चेक में अगर कंडीशन फॉल्स आती है तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। वाइल ब्लॉक में अगर फर्स्ट एग्जीक्यूशन में अगर कंडीशन हमारी फॉल्स आ रही है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। डू वाइल में ऐसा नहीं होता है, डू वाइल में कंडीशन हमारी फॉल्स भी आ गई तो फर्स्ट टाइम डू ब्लॉक जो है वो हमेशा एग्जीक्यूट होता है। मतलब कि डू वाइल में क्या होता है, द डू ब्लॉक विल एग्जीक्यूट एटलीस्ट वंस इन द डू वाइल ब्लॉक, whereas in case of the for loop और while loop, जो ब्लॉक है वो कब एग्जीक्यूट होगा, when only this condition is evaluated to the true, अदरवाइज वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब देखो एग्जाम में आपको डिफरेंस पूछा जाता है,
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड द डू व्हाइल लूप? तो फॉर लूप अगर कंडीशन इवैल्यूएट होगी तो एग्जीक्यूट होगा, व्हाइल लूप इफ द कंडीशन इज इवैल्यूएट टू ट्रू देन इट इज एग्जीक्यूटेड, do while if the condition is evaluated to the false then also do block will execute at least once. क्यों execute होगा? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, initially we are executing the block of statement and then we are checking the condition. फिर से सुनो, do में क्या हो रहा है, initially we are executing the statement and then we are checking the condition. पहले क्या हो रहा है, we are executing the block और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन को चेक कर रहे हैं। देखो सबसे पहले पॉइंटर आएगा यहाँ पर, यहाँ से जाएगा ये करली ब्रेस पर, ठीक। उसके बाद बॉडी ऑफ द लूप ये एग्जीक्यूट करेगा सारी, उसके बाद अपडेशन देना पड़ेगा, तो ये तो एग्जीक्यूट हो गया, बराबर एग्जीक्यूट हो गया। फिर कहाँ जा रहा है, वाइल पर, तो ये जो ब्लॉक है ये कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। देन इट चेक फॉर द कंडीशन, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये फिर से जाएगा डू के नेक्स्ट, यहाँ पर डू की जहां से बॉडी स्टार्ट होती है वहां पर, कब, इफ इट इवैल्यूएट टू द ट्रू। तो ये कर्सर से ये कर्सर के बीच में एग्जीक्यूशन होते रहेगा, ये करली ब्रेस से लेकर ये करली ब्रेस तक ये एग्जीक्यूट होते जाएगा, ये मल्टीपल टाइम ऐसे घूमते जाएगा। कब तक, जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होती है। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी ये ऊपर नहीं जाएगा, ये नीचे जाएगा। जैसे ठीक, तो ये करली ब्रेस और ये करली ब्रेस दोनों के बीच में क्या होगा, बॉडी ऑफ द लूप, इफ द कंडीशन इज इवैल्यूएट टू द ट्रू, ये यहाँ से भागेगा ऊपर में और यहाँ पर वापस आ जाएगा, और जैसे हमारी कंडीशन फॉल्स आ जाएगी हम जाएंगे इसके नीचे। यस, इसमें कोई डाउट? ठीक, अब देखिए यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें कौन सी है। पहली चीज यहाँ पर हमने सेमीकोलन लगाया हुआ है, ये यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि इसके पहले हमने क्या लिखा था, वाइल, वाइल में यहाँ पर हमने लिखा था कंडीशन और यहाँ पर करली ब्रेस को स्टार्ट कर दिया हमने। यहाँ पर सेमीकोलन आपने लगाया था क्या, नहीं लगाया था हमने। फॉर यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर स्टार्ट हुआ था, यहाँ पर सेमीकोलन लगाया था क्या, नहीं लगाया था। बीच में हमारे पास में तीन स्टेटमेंट थे, इसलिए वहां पर एक स्टेटमेंट इनिशियलाइजेशन, अब कंडीशन, और यहाँ पर था हमारे पास में अपडेशन। ठीक, तो ये हो गया वाइल और डू वाइल। इसमें कुछ डाउट हो तो बताइए। ये सिंपल प्रोग्राम मैंने आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया कि इफ कंडीशन, अब देखो पहले हमको दिख रहा है कि सर हियर कंडीशन इज रॉन्ग, बट स्टिल वी आर गेटिंग द प्रिंटफ स्टार, यहाँ पर एक बार एग्जीक्यूट हुआ। तो फॉर लूप और वाइल लूप एग्जीक्यूट तभी होंगे जब कंडीशन ट्रू होगी तब, whereas in case of the do while block it will execute at least once। ये ध्यान में रखना कि ये जो ब्लॉक होगा इट एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस, एक बार तो भी एग्जीक्यूट होगा अगर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो भी। ध्यान में रखना हमेशा, फॉर लूप डिफरेंस तीनों में होता है, चौथा कोई नहीं होता हमारे पास में। फॉर लूप वाइल लूप दोनों भाई भाई है, सिर्फ एक मिरर के ये डायरेक्शन से दिखता है, एक मिरर एक राइट एंगल से दिखेगा और एक लेफ्ट एंगल से दिखेगा, बाकी कुछ नहीं। ठीक, अब क्वेश्चन एक था कि व्हेन वी हैव टू यूज दिस फॉर लूप एंड व्हेन वी हैव टू यूज दिस व्हाइल लूप। तो फॉर लूप में हमको सीधा सीधा दिख रहा है कि इनिशियलाइज कर दो, कंडीशन दे दो और अपडेशन कीजिए। सो व्हेन वी हैव अ स्पेसिफिक सीरीज,
or a specific sequence of the characters, specific sequence of a numbers, or when we know the particular sequence of the series, in that case we use the for loop. बोलोगे सर इसको एक्सप्लेन करके बताइए। सिंपल है, मैंने कहा कि चलो 100 तक नंबर प्रिंट करो। यू नो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द 1, दैट इज इनिशियलाइजेशन। आपको कहाँ तक जाना है? 100 तक जाना है, और एक के बाद दो आने वाला है, मतलब कि दैट विल बी अपडेटेड बाय द 1। मैंने कहा आप लोगों को चलो एक काम करो, 1 से लेकर 100 तक आपको ऑड नंबर बताओ। तो आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंड कहाँ तक करना है। जहां पर आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, एंड कहाँ पर करना है, एंड वी यू नो दी कि पॉइंटर कितने से बढ़ाना है, इन दैट केस वी यूज द फॉर लूप। ऐसा आपको कभी भी कोई नहीं बोलेगा कि भैया आपने यहाँ पर फॉर लूप क्यों यूज किया और वाइल लूप क्यों यूज नहीं किया। वाइल लूप वहां पर होगा जहां पर आपको कंडीशन, मतलब कि अपडेशन कितने से करना है ये नहीं पता होगा, कितने लूप घूमेंगे ये पता नहीं है हमको, अनसर्टेनिटी जहां पर होगी वहां पर हम वाइल लूप का यूज करेंगे। ठीक है, किस पर वाइल लूप का जो है इसका एग्जांपल मैं आपको कल देता हूँ। ठीक, आज कुछ इंपॉर्टेंट दो प्रोग्राम लेने हैं मुझे। एक होता है फिबोनाची सीरीज का। देखो फिबोनाची सीरीज क्या होता है, किसको पता है क्या होता है, बोलिए। ओके, आगे। गुड, यस। फिबोनाची सीरीज जो होता है, जो सीक्वेंस ऑफ द नंबर्स होता है, जिसमें जो नंबर कॉम्बिनेशन जो हमारे पास में क्रिएट होता है। फॉर एग्जाम्पल वी वांट ए 10th नंबर, so that will be created by adding the previous two numbers. Previous two numbers means ninth term and the eighth term. तो नंबर ना कहते हुए हम इसको कहते हैं टर्म, eighth term, and this will be ninth term. Okay, तो सवाल आता है कि सर इसको स्टार्टिंग तो कहीं से करनी पड़ेगी। यस, दैट विल स्टार्टिंग फ्रॉम दी फर्स्ट नंबर एज अ जीरो एंड सेकेंड नंबर एज दी वन। बराबर ध्यान से देखो, पहले मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ, पहले एक बार बोल देता हूँ मैं, फिर आपको जहाँ पर डाउट होगा वो मुझे पूछना। ठीक, सो वी आर एट दी फिबोनाची सीरीज। सो फर्स्ट नंबर इज जीरो, ये हो गया वन टू, ये नंबर है ऊपर में। और ये हो गया हमारे पास में फर्स्ट टर्म एंड ले लेते हैं, यहाँ पर हम टर्म वर्ड यूज करते हैं, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो जो न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर क्रिएट होता है वो एडिशन ऑफ द प्रीवियस टू टर्म, मतलब कि मुझे अगर थर्ड वाला सीक्वेंस चाहिए तो प्रीवियस टू टर्म मतलब जीरो प्लस वन कितना हो जाएगा, वन। अगर मुझे फोर्थ चाहिए तो दैट विल बी नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ सेकेंड एंड थर्ड, मतलब कि फोर्थ बनेगा। सेकेंड और थर्ड मतलब कि वन प्लस टू इज इक्वल्स टू यहाँ जाएगा थ्री। फिफ्थ चाहिए, यू हैव टू इवेल्यूएट दिस वैल्यू ऑफ द थ्री एंड फोर, टू प्लस थ्री इज फाइव। सिक्स चाहिए, प्रीवियस टू टर्म थ्री फाइव, यस बोलिए। ओके सॉरी, जीरो प्लस वन इज इक्वल्स टू टू, यहाँ पर आ जाएगा, इसको निकालते हैं। ओके, सो जीरो प्लस वन, ये देखिए थर्ड टर्म अगर हमको इवेल्युएट करनी है तो दैट विल बी द प्रीवियस टू टर्म्स, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म, जीरो प्लस वन इज वन। उसके बाद जब हमको फोर्थ पे जाना है तो सेकेंड प्लस थर्ड, ये कितना हो जाएगा, वन प्लस वन इज द टू। फोर फाइव, फोर फाइव मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में, सॉरी फिफ्थ चाहिए, थ्री एंड फोर कितना हो गया, वन टू, यहाँ पर आ जाएगा थ्री, बराबर है। सिक्स के लिए फोर और सिक्स का एडिशन कीजिए, मतलब टू थ्री, ये हो गया हमारे पास में फाइव। सेवन पे जाओगे यहाँ पर आ जाएगा एट, एट चाहिए, पहले वाले मिक्स करो, यहाँ आ जाएगा थर्टीन। चलो, ये आ गए हमारे पास में, एक हमने मैनुअल कैलकुलेशन किया हुआ है, ये हमने हमारे कंप्यूटर से अभी तक सॉल्व नहीं किया हुआ। ठीक, अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, ये थर्ड टर्म चाहिए, ध्यान से देखना भी। ये फर्स्ट टर्म को मैं कहता हूँ एफ जीरो, सेकेंड टर्म को कहता हूँ एफ वन, और ये हो गया मेरे पास में एफ टू, मतलब कि एफ जीरो प्लस एफ वन इज इक्वल्स टू, ये हो गया एफ टू। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म और
ये टर्म का एडिशन करके हमको मिलेगी नई टर्म, मतलब कि ये हो जाएगा 0 प्लस दैट इज 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू दी 1। ये रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास में। तो हम नेक्स्ट टाइम व्हेन वी मूव फर्दर, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ देखिए ये आ गया 0 + 1 इज इक्वल्स टू 1। इज देयर एनी डाउट टिल नाउ? ओके, अब देखिए हम यहाँ पर आ गए। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, फोर्थ टर्म, ये वाली टर्म। ध्यान से देखना बराबर, हमारे पास कितनी टर्म्स है, वी हैव 3 टर्म्स, 1 2 3। यहाँ लिख देता हूँ मैं, f0 इज इक्वल्स टू 0, f1 इज इक्वल्स टू 1 एंड f2 इज इक्वल्स टू f0 प्लस f1। फर्स्ट कंडीशन दिस वन, इसको यहाँ पर ये लेके आ जाते हैं। चलो ये फर्स्ट टर्म हो गई, ये हमारे पास सेकंड, दिस इज सेकंड टर्म, और ये हमारा कैलकुलेशन आ गया। So these are the three statement, हमारे we have only three statement. Initially we have first term and second term. The third term will be obtained by adding previous two terms. So f0 plus f1, f0 plus f1 is equal to f2. So ये तीन स्टेटमेंट आ गए। अब क्या करना है, वी हैव टू मूव ऑन फर्दर। आगे जब बढ़ना है हमको, सपोज हम बात करें इस स्टेटमेंट यहाँ पर, तो यहाँ पर आना है तो क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो ब्लॉक्स है इसको हम आगे सरकाएंगे। देखिए तो मैं एक शिफ्ट से आगे लेके जा रहा हूँ, एक ब्लॉक से मैंने सिर्फ इसको आगे लेके गया। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ट्रांसफर द वैल्यू, just we are transferring the value. Transferring means the f1 will move to the f0, f0 is equals to f1, f1 में क्या आ रहा है f2, f1 is equals to f2। फिर से f2 के लिए क्या होगा, f0 प्लस f1। ये जो है ये चलेगा लूपिंग में, ये वाला पोर्शन, मतलब ये जब नेक्स्ट टाइम जब हमारे पास में यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे हम 4 के लिए, 1 + 1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2। जब नेक्स्ट और आगे बढ़ेंगे तो ये बढ़ेगा आगे, देखिए कंट्रोल सी, सेम ये आ जाएगा यहाँ पर, एंड f2 will down move down like this। इसको भेज देते पीछे में। जल्द नहीं जा रहा है, इसको रख देते हैं यहाँ पर। चलो ये क्या होते जाएगा, दिस विल रिवाइंड। ठीक, तो ये f0 इज इक्वल्स टू f1, f1 इक्वल टू f2 एंड f2 इज इक्वल्स टू f0 + 1 f1, ये घूमते जाएगा। इनिशियली क्या करना है, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड वंस, दिस विल बी एग्जीक्यूटेड वंस, ये एक बार घूमेगा हमारे पास में। ये इनिशियल वैल्यूज है, दीज आर नथिंग बट इनिशियल वैल्यूज। इनिशियल वैल्यूज होने के बाद ये यहाँ पर जाएगा और ये कैलकुलेशन परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा।
और ये टर्म हमेशा ये घूमते जाएगी। कब तक? जब तक आप उसको नंबर ऑफ टर्म्स दे दोगे। अभी देखिए, वी आर गेटिंग द फर्स्ट वैल्यू हियर एंड दिस इज द सेकंड वैल्यू। तो ऑब्वियसली जब ये कैलकुलेशन करोगे तो हमको क्या मिलेगा? थर्ड वैल्यू। इसका मतलब है कि जो लूप चलेगा हमारा वो चलेगा फ्रॉम 3 टू, आपको जो नंबर चाहिए सपोज 5। पहली टर्म यहाँ पर हमारे पास में वी हैव द सेकंड टर्म हियर, नेक्स्ट कैलकुलेट फॉर द 3, नेक्स्ट फॉर द 4 एंड नेक्स्ट फॉर द 5, so it will execute 3 times. So any doubt in this? प्रोग्राम में चलते अभी हम। चलो न्यू, फाइल NCLVDE कौन सी लगेगी बोलिए? न्यू डॉट एच, नेक्स्ट वाली। चलो वेरिएबल्स कितने लगेंगे बताइए? चलो वेरिएबल के बारे में कभी भी ज़्यादा नहीं सोचना। इनिशियली हम स्टार्टिंग कर लेते हैं F0 के बाद F1, देन fib, fib that is used for the calculation. Okay, so CLR SCR initialize the value of equal to 0, F1 is equals to 1, चलो अंदर, और I is equals to 3, I less than or equals to n, और I प्लस कंप्लीट। पहले एक कैलकुलेशन कर लेते हैं हम, fib is equals to, देखिए ये लॉजिक यहाँ पे लिखा हुआ है, बस ये ध्यान में रखना। कौन सा वाला? ये कैसे मूव हो रहा है देखिए, F0 F1 F2, F1 की वैल्यू जा रही है F0, F2 वैल्यू इज मूविंग टू द F1 and finally we have to perform the calculation F2 is equals to F0 plus F1. Initially F0 is equals to 0, F1 is equals to 1, F2 is equals to F0 plus F1. So F0 plus F1। नेक्स्ट यहाँ देखो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, ये देखो नीचे में सर्कल वाली वैल्यू, इसको ऊपर ले लेते हैं हम। तो F0 is equals to F1, F1 is equals to F2, बस चेक करते बाद में। और यहाँ पर हम डिस्प्ले कर देते हैं printf, वैल्यू को डिस्प्ले कर देते हैं nd, और यहाँ पर हम डिस्प्ले करेंगे वैल्यू हमारी फिब में जारी है। तो और स्टार्टिंग में हमारे पास दो वैल्यूज है, यहाँ पर इसको हम डिस्प्ले कर देते हैं। दो वैल्यूज कौन सी है? फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू। तो %d for the first value, %d for the second value. First value is stored in the variable F0 and second is stored in the F1। ठीक, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। और फाइनली गेट ch, क्या बोलिए? क्या बोलिए? हाय, ओके, हाँ चलो हाय हो गया अभी। चलो आगे चलते हैं हम। फाइल दो एरर आ रही है, यहाँ पर h नहीं लिखा हमने, stdio.h। चलो एग्जीक्यूट कंपाइल टू F0 F1, सॉरी यहाँ पर क्या किया था हमने, हाँ तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, देखो इस तरह से ये लॉजिक जो था यहीं से हमारा रॉन्ग हुआ था। तो यहाँ पर हम कर देते हैं फिब, आएगा फिब,
क्या आ गया fib। इसलिए हम यहाँ पर सूडो कोड बनाते हैं, सूडो कोड का एल्गोरिदम बनाते हैं, फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो जो रॉन्ग कहाँ हो रहा है वो ध्यान में आ जाता है। सो अब चेक करते हैं हम। fib इज इक्वल्स टू f0 f1, ठीक है। f0 इज इक्वल्स टू f1, f1 इज इक्वल्स टू fib। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, आ गया नंबर याद। कैलकुलेट करो, फर्स्ट नंबर 0, सेकेंड 1 1 1, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 8 13, ये बराबर आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट? हाँ क्या बोलिए? रिटर्न मतलब? अच्छा, प्रोग्राम, प्रोग्राम की तरफ आता हूँ मैं। देखिए यहाँ पर आउटपुट मिला हमको। चलो यहाँ पर देखिए प्रोग्राम में, प्रोग्राम की तरफ ध्यान मत दीजिए, मैंने यहाँ पे जो आपको यहाँ ये जो लॉजिक दिया ना, ये लॉजिक की तरफ ध्यान दीजिए। फर्स्ट नंबर इज 0, ये आ गया, यहाँ देखिए ये लिखा मैंने, फर्स्ट नंबर f0 0। सेकेंड नंबर यहाँ पर आ गया। थर्ड नंबर विल बी दी addition of the previous two number, that is f0 f1, so f fifth is equals to f0 f1। उसके बाद क्या करना है, वी हैव टू रिवाइंड इट। सो ये नंबर हम ट्रांसफर करेंगे, कैसे करेंगे देखिए, ये f0 इसको मैंने क्या किया, कॉपी किया और एक बिट को आगे शिफ्ट किया तो यहाँ पर आ गया f0 f1। so the value of f1 will move to the f0, fifth will move to the f1। देखिए तो f1 f0, ये देखिए यहाँ पर आएगा f1 इज इक्वल्स टू फिब, और यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे फिर फिब इज इक्वल्स टू f0 f1।